آج کے اس انقلابی اور انتخابی جلسے کے صدر باوقار میرے بڑے اچھے دوست، آپ کے بڑے سچے خادم اور MIM کے بہت ہی نیک سپاہی جناب بھائی عارف سیفی صاحب، مہاراشٹر سے آئے ہوئے بھائی ڈاکٹر کنال صاحب، بہار میں نوجوانوں کے درمیان میں انقلابی جوش اور جذبے کی تحریک چلانے والے بہار کے MIM کے یوتھ پریزیڈنٹ بھائی جناب عادل حسن ایڈوکیٹ صاحب، عزیز زاہد بابو اور یہاں پر موجود معزز علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیزوں، سب سے پہلے تو اگر میری نسبت سے کسی کو انتظار کی تکلیف ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں۔ میں انتخابی پروگرام میں احمد آباد میں تھا، 1 گھنٹہ لیٹ ہونے کے نتیجے میں فلائٹ میرے کئی پروگرام متاثر ہوئے اور یہاں میں پہنچنا اپنے پر واجب اور لازم سمجھتا تھا، اس لیے دوڑ کر آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ وقت کم ہے، کچھ فریاد کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی جو اطمینان بخش آنکھیں ہیں اور آپ کا جو پرنور چہرہ ہے اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ بھائی جناب عارف سیفی صاحب کے پتنگ پر اپنے اس علاقے کی ترقی کے لیے، یہاں کے مسائل کے حل کے لیے ہی نہیں بلکہ موجودہ وقت ملک میں ابھرتی ہوئی اپنی صالح قیادت بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کے بازو کو مضبوط کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں گلیوں کے مسئلے ہیں، نالوں کے مسئلے ہیں، صفائی کے مسئلے ہیں، محلہ کلینک کا مسئلہ ہے، اس علاقے میں تعمیر و ترقی کے بہت سارے مسائل ہیں جن پر تذکرہ ہو گیا ہوگا۔ میں ایک دوسرے پہلو پر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جمہوریت میں ہمارا ووٹ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور فیصلے کی سب سے بڑی قوت ہمارے درمیان میں ہے۔ لوگ یہ قول پہلے کہتے تھے کہ جیسن راجا ویسن پرجا، معاف کیجیے گا یہ قول آج کے زمانے میں شہنشاہوں کی بستی کے لیے درست ہو سکتا ہے، ملک کے جمہوری نظام کے لیے یہ قول درست نہیں ہے، چونکہ اب راجا کے گھر میں رانی کے کوکھ سے ملکہ کے آغوش میں کوئی شہزادہ جنم نہیں لیتا ہے، بلکہ ہماری انگلی، بلکہ کہیے کہ شہادت کی انگلی کے ذریعے سے جو چنا جاتا ہے وہی ہمارا راجا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو کہنا پڑے گا کہ جیسن پرجا ویسن راجا۔ ہم کیسے ہیں؟ فیس از اے نوٹس بورڈ آف مائنڈ۔ جس طرح سے انسان کا چہرہ اس کے اندرون کی عکاسی کرتا ہے، آپ کا نمائندہ بھی آپ کے علاقے اور آپ کے ووٹر کا عکس ہوتا ہے، ترجمان ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں کئی امیدوار ہیں، پچھلے امیدواروں کے شکوے گلے میں نہیں کرنا چاہتا، ان کے تو سب سے بڑے گواہ آپ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کانگریس کی بھی ایک عزیزہ ہماری آئی ہے اور وہ اپنے ابا جان کے نام پر آئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس وقت کانگریس کو ووٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ پر گناہ اور ایک جرم کرنے کے برابر ہے۔ اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہر غیور انسان، اس ملک میں امن و امان کا طلبگار انسان، اس ملک میں ہندو مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد کا کوئی انسان ہوگا تو BJP کی شرارتوں سے بہت ہی پریشان ہے۔ BJP نے نہ صرف نفرت کی سوداگری کی ہے، قتل و غارت گری کی ہے، بلکہ اس ملک آئین کے پرچے بھی اسے اڑائے ہیں۔ اس سے لڑنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے ایک فریضہ ہے، لیکن ہمیں اس سے بھی لڑنا ہوگا کہ اگر سڑک پہ نالے میں پانی آیا ہے تو کیچڑ سے ہی نفرت صرف ہم کو نہیں ہے، بلکہ کس کے گھر سے نکل کر آیا ہے اس مجرم کو بھی تلاش کرنا ضروری ہے۔ آج BJP جہاں تک پہنچی ہے، یہ کانگریس کے ناپاک آغوش سے جنم لے کر اس نے یہ شرارت کی ہے، اسے کانگریس کو بھی سبق پڑھانا ضروری ہے۔ مجھے معاف کیجیے اور کہہ لینے دیجیے کہ 6 تاریخ کو کسی کی شادی کی تاریخ ہو، کسی کی ولادت کی تاریخ ہو 6 دسمبر، اب خوشیاں لے کر 6 دسمبر نہیں آتا ہے، میرے آنکھوں میں غم کی وہ تصویر لے کر آتا ہے کہ گنبد و محراب کے ٹوٹنے کی خبر لے کر آتا ہے۔ فروری کی تاریخ ہے، کل ہی میں اس وقت میں گودھرا میں تھا اور گودھرا کی ماؤں کی آنکھوں میں آج بھی میں نے خون کے آنسو ٹپکتے ہوئے دیکھے ہیں، اور جب بھی فروری کی تاریخ آتی ہے ہمیں گجرات میں ماؤں بہنوں کی لوٹی ہوئی عزت اور عصمت اور اس کی جلی ہوئی لاشوں کا نظارہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم تو اسے معاف نہیں کر سکتے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ
गुजरात से भी पहले मुरादाबाद की पाकीज़ा ईदगाह में जिसने हमारे नौजवानों के सीनों पर, नमाजियों के सीने पे गोली चलाई, क्या आपने उसे माफ करने का फैसला किया है? क्या मुझे बताइए, भागलपुर में जिसने रेस की सनत को हमारी खाकस्तर कर दी, क्या उसे माफ कर देंगे? हंडन नदी के किनारे हातिमपुरा में, मेरठ में जो हमारे नौजवानों के सीने पे गोली चलाई, किसी हिंदू ने, किसी सिख ने नहीं चलाई थी, बल्कि कांग्रेस के वहां के पीएससी के नौजवान ने, पुलिस ने चलाने का काम किया था। क्या उस कांग्रेस को माफ कर देंगे? फिर आप कहिएगा कि भाई कल तक तो कांग्रेस में तुम भी थे, तुम्हारे अब्बा जान भी थे। ये कान खोल कर सुन लीजिए, जब माफ कीजिएगा, मेरी बहनें और बेटियां हैं, हजरत महल भी यहाँ पर है और जौहर की माएँ भी यहाँ पर बैठी हुई है। माफ करना और सबको कह लेने देना कि कुदरत का फैसला हो, अगर 12 साल तक किसी के आगोश में बच्चा न हो तो पड़ोसन के बच्चे को गोद में लेती है। और शफकत मादरी का तो ये भी जज्बा है, न मिले पड़ोसन के बच्चे तो बिल्ली और बकरी के बच्चे को भी औरत आगोश में लेती है। लेकिन जब अल्लाह तबारक तआला उस बाज को एक काला कलोटा ही बच्चा दे, उसकी पेशानी चूमती है, लेकिन मुबारक है मिल्लत के लोगों, काला कलोटा बच्चा नहीं बल्कि चौधरी के चांद को शर्मा देने वाला वो खूबसूरत बच्चा आपके आगोश में, जिसका नाम बेनिस्तर अवेदी है और वो आज आपके आगोश में है। जब मेरी लीडरशिप मेरे पास है तो फिर किसी की लीडरशिप को तलाश करने की जरूरत नहीं है। नौजवान मुझे बताओ, किसी का खालू बहुत अमीर हो, किसी का मामू वजीर हो, किसी का फूफा बहुत कबीर हो, ये तीनों मर जाए तो क्या बच्चा यतीम होगा? बच्चा कब यतीम होता है? बाप फकीर हो, मजदूर हो, लकवे के बिस्तर पर हो, जिस दिन बाप दम तोड़ देता है बच्चा यतीम हो जाता है। याद रखना, बच्चा जिस तरह बाप के बगैर यतीम हो जाता है, कौमें भी अपनी क़यादत के बगैर यतीम हो जाती हैं। आज पूरे मुल्क में इन तालियों से इन जालिमों के गाल सुर्ख होंगे। तालियां बजाओ, निस्वानी नहीं बल्कि मर्दांगी की वो तालियां जो कांग्रेस के भी गाल को और बीजेपी के गाल को लाल कर दे। जवानी की तालियां बजाओ जरा सा। इन जालिमों को सजा को कम से कम, ये तालियां नहीं, हिमायत भी है और मुखालिफत भी है। बताओ कि आज ये कौम यतीमी है, कोई पार्टी हमारी बात करना नहीं चाहती। शाहीन बाग के जियालो, अल्लामा इकबाल का अलामती परिंदा शाहीन, परिंदों की दुनिया का दरवेश है तू कि शाही बनाता नहीं आशियाना। उकाबी रूह जब पैदा होती है नौजवानों में, उसे मंजिल नजर आती है अपने आसमानों में। उकाबी रूह ने वाले शाहीन बाग के लोगों, याद रखो, बेनिस्तर अवैसी ने उस काले कानून के अगर परखचे न उतारे होते तो शाहीन बाग की गलियों को आबाद करने की आपको और हमको हिम्मत नहीं होती। मैं मौजूद उलमा कराम की पेशानियों को भी देख रहा हूँ। उलमा कराम मुझे बताइए कि इस मुल्क में हमारा जानी नुकसान भी हुआ, माली नुकसान भी हुआ, 40,000 से ज्यादा फिरका वाराना फसादात हुए, माओ बहनों की आबरू भी लूटी, हमने सब गम बर्दाश्त किया है। लेकिन वक्ती तौर पर हम तो अपने जान के दुश्मन को माफ कर सकते हैं, लेकिन जान से भी ज्यादा अजीज अगर मेरे लिए कोई चीज है तो मेरा ईमान है। हम अपने ईमान के दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकते। मेरे ईमान की दुश्मनी में हमारी शरीयत पर हमला किया गया और तलाक बिल की पेशी हुई, और तलाक बिल की पेशी तो बीजेपी ने की, लेकिन खामोशी तौर पर हिमायत की। याद होगा, मैं उलमा कराम से कहूंगा कि आप बाज़मीर लोग हैं, गैरतमंद हैं, दयानतदार हैं, आपको दयानतदारी से फैसला करना चाहिए कि उस वक्त 543 पार्लियामेंट में थे, मौलाना असराउल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह से ज्यादा शरीयत के जानकार कोई नहीं थे। आपको मालूम होगा, इस गुनहगार ने हजरत की जीत के लिए अपनी कुर्बानी भी पेश की थी। और वो क्या है, जब तलाक के बिल पर पेशी की बात आई, किसी की सुनी सुनाई बात में नहीं कहता हूं, मौलाना मरहूम ने खुद ही गवाही दी है, आज भी मौजूद है कि मैं तलाक बिल के बारे में बोलना चाह रहा था मुखालिफत में, लेकिन कांग्रेस ने मुझे बोलने की इजाजत नहीं दी। मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूं, अगर गैरत ईमानी जिंदा है तो कांग्रेस का कोई वोट का तलबगार तुम्हारी बस्तियों में आए, भूखा हो तो खाना खिला देना, प्यासा हो तो पानी नहीं शरबत पिला देना, लेकिन वोट का जब सवाल करे ये कह देना कि कांग्रेस के लोगों तुमने किस बेशर्मी से पार्लियामेंट के अंदर में तलाक बिल पर हमारे एक आलिम दीन को बोलने की इजाजत नहीं दी है, मेरे तलाक के बिल पर मेरे आलिम को बोलने की इजाजत नहीं दी है। मेरी बस्ती में भी तुमको वोट मांगने का हक नहीं होगा, वोट के बारे में तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं होगी। गैरत सबसे बड़ा सरमाया होता है, जो कौम गैरत खो देती है वो कौम दुनिया में इज्जत के साथ नहीं रह सकती है। मुल्क का जो निजाम है उसमें अपनी पार्टी खड़ी करने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों ने, दलितों ने भी अपनी क़यादत खड़ी कर ली, पिछड़ों ने भी अपनी क़यादत खड़ी कर ली, लेकिन आज क्या हो गया है, सुल्तानों की वो निशानियां बच्चे तारीख के औराक न भी पढ़ो। दिल्ली के नौजवानों,
तो लाल किला की फसीलें पुकार पुकार कर तुमसे कह रही है कि तू गर्दन झुका के क्यों जी रहा है, तेरे बाप दादा की अजमत की निशानी अब भी बाकी है। तुम्हें कुतुब मीनार की बुलंदी, तुम्हारे बुजुर्गों की बुलंदी का पता देती है। तुम गर्दन झुकाकर दूसरे के मार्फत में सियासत करने की बात न करो, बल्कि अपनी पार्टी MIM को मजबूत करो। MIM को मजबूत करना इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हमने वक्त रहते हुए एक इंसान का जिस्म हो, चौड़ा सीना हो, बाजू तवाना हो, जानू में भी बड़ी सेहतमंदी हो, लेकिन अगर उसकी गर्दन कटी हुई हो तो लाश है, बाजू भी कट जाए और जानू भी कट जाए, और अगर गर्दन बाकी है तो उस इंसान की जीने की उम्मीद बाकी है। मेरे भाइयों, तो अपनी गर्दनों की हिफाजत के लिए, अपने शरीयत की हिफाजत के लिए, अपने सफों में इमामत पैदा करने के लिए हम पर आप पर लाजिम है कि हम ऊट ऊट नहीं, ऊट ज़मीर की आवाज़ है, ऊट ऊट नहीं शहादत है, ऊट ऊट नहीं ऊट अमानत है, ऊट ऊट नहीं तलवार है। जालिमों को दोगे गर्दन उतारेगा, नाकारा को दोगे तलवार पड़ी रह जाएगी, तुम्हारी आबरू लुट जाएगी। किसी सिपाही को दोगे तो वो तलवार का सही इस्तेमाल करके तुम्हारे गर्दनों की हिफाजत भी करेगा और अपने फरीजों को भी अंजाम देगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमामी लोगों ने इस वक्त MIM को वोट देने का फैसला कर लिया है। जो भाई हमारे रूठे हुए हैं उसे मनाइए, जो किसी वजह से कोई नाराजगी है उसको हटा दीजिए। जब तलवारें बातिल की उठती हैं, नहीं पूछती कि यूपी के रहने वाले हो कि बिहार में रहने वाले हो, सैफी हो कि शेख हो, बरेलवी हो कि देवबंदी हो, तुम्हारा मसलक क्या है, तुम्हारी बिरादरी क्या है, दुश्मन की तलवारें उठती हैं तो कलमे की बुनियाद पर आपको एक समझनी है। इसलिए तय कर लो, मेरी मैयत में जो कंधा देगा उसी का झंडा मेरे हाथ में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इनकलाबी नारों के साथ एक मरतबा मुझे इत्मीनान न होगा, मैं दूर से चलकर आया हूँ, फरियाद कम कर पाया हूँ। अपने बाजों को लड़ा कर यकीन दिला दीजिए तो इनकलाब जिंदाबाद। पड़ोस में देखिए तो किसी भाई के दिल में कोई बात है क्या?